I had no idea کہ اس پروفیشن میں آنا میرے لیے اس قدر خطرناک ثابت ہوگا. دن ہو رات ہو, ہم ایجنٹس کے لیے کوئی ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں ہوتا. ہماری زندگی صرف گمنامی ہے. سوتے جاگتے, اٹھتے بیٹھتے, ہمیں بس ایک ہی فکر رہتی ہے کہ دشمن ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. ناظرین, انسان شروع دن سے اپنی قیمتی چیزوں کو بچانے کے لیے ہر حد تک جاتا ہے, لیکن آج 2021 میں انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ روپیہ پیسہ, گھر گاڑی, زیورات؟ بالکل نہیں. آج ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز ہے ہمارا ڈیٹا. جی ہاں دوستوں, ہمارا ڈیجیٹل ڈیٹا, جو کہ کبھی بھی کہیں بھی آپ کے موبائل, لیپ ٹاپ, آئی ڈی کارڈ اور کریڈٹ کارڈ سے اڑایا جا سکتا ہے. حکومتیں, ایجنسیاں, جاسوس اور مجرم یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں. جب بھی کبھی ایجنسیز کو کسی جگہ جانے کی اجازت نہیں ملتی تو وہ پھر جاسوسوں اور ایجنٹس کا سہارا لے کر اپنا کام پورا کرتے ہیں. لیکن بدلتے وقت کے ساتھ یہ کام انتہائی خطرناک ہو چکا ہے. جہاں ٹیکنالوجی کے بڑھنے کے ساتھ یہ کام ایڈوانس ہو چکا ہے, وہیں نت نئے کرائمز کے طریقے بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے سردرد کا باعث بن گئے ہیں. اور اس سب کے لیے ہمیں اپنے دشمن سے 2 ہاتھ آگے رہنا پڑتا ہے. اس کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھنی پڑتی ہے تاکہ ہم اس کے خوفناک رازوں کو جان سکیں. اور اس سب کے لیے ہم ہر چیز کا استعمال کرتے ہیں, روپیہ, پیسہ, لالچ, حتیٰ کہ سیکشول اٹریکشن بھی. اور جو لوگ ان چیزوں سے بھی قابو نہیں آتے ان پہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں. مائکرو فون, روبوٹس, ٹرانسمیٹر, ڈرونز, یہ سب ہمارے لیے بڑی عام سی بات ہے. عام انسانوں کے لیے تو ڈیجیٹل ڈیٹا بچا کر رکھنا تقریباً ناممکن ہے. کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں جاتا ہے تو اپنے قدموں کے نشانوں کے ساتھ ساتھ اپنا کوئی ڈیجیٹل نشان بھی چھوڑ جاتا ہے, اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن, اے ٹی ایم ٹرانزیکشن, وائی فائی یا پھر فیس بک پر کی گئی آپ کی آخری پوسٹ, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مختلف ایپس کو دی ہوئی آپ کی لوکیشن سے بھی آپ کو بڑی آسانی سے ٹریک کیا جا سکتا ہے. کسی بھی انفارمیشن کو حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں, لیکن اگر سادہ الفاظ میں کہا جائے تو اس کا تعلق سننے اور دیکھنے کے ساتھ ہے. یعنی آڈیو کے ذریعے کسی کو سننا اور ویڈیو کے ذریعے دیکھنا. اگر ہم آڈیو کی بات کریں تو 1950 اور 60 کی دہائی میں ایجنسیاں چھوٹی چھوٹی بگز کا استعمال کرتی تھیں, جس سے کسی کی بھی آواز کو بڑی آسانی سے سنا جا سکتا تھا. وہ ایک چھوٹے ریڈیو ٹرانسمیٹر کو ایک مائکرو فون کے ساتھ جوڑ دیتے, اور اس کا سائز اتنا چھوٹا رکھا گیا کہ وہ کسی بھی جگہ پر فٹ ہو سکے. 1970 کی بات ہے کہ چیکوسلواکیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی نے امریکہ کے ایمبیسڈر کو نشانہ بنایا. اب انہوں نے کیا یہ کہ ایمبیسڈر کے ہاں ایک نوکرانی کام کرتی تھی جو اس کے شوز بھی پالش کرتی تھی. تو انہوں نے اس نوکرانی کے ذریعے ایمبیسڈر کے شوز میں ایک مائکرو فون فٹ کرا دیا. اب وہ ایمبیسڈر وہ شوز پہن کے اپنے آفس چلا گیا. اب وہ جہاں بھی جاتا اس کی آواز کو وہ بڑے آرام سے سن سکتے تھے. اچھا, کچھ دن تو یہ ڈرامہ چلتا رہا, لیکن کچھ دنوں کے بعد نا ہمیں اپنے ڈیٹیکٹرز پہ کچھ ویوز اور سگنلز آتے ہوئے محسوس ہوئے. ہم نے بڑا سرچ کیا, بڑا ڈھونڈا, لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ ویوز آ کہاں سے رہی ہیں. خیر کچھ دیر کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ ویوز ایمبیسڈر کے کمرے سے آ رہی ہیں. لیں جی, ہم نے آفس میں جا کے ہر چیز چھان ماری, لیکن ہمیں کوئی چیز نہیں ملی. آخر پہ آ کے ہم نے ایمبیسڈر کے کپڑے بھی چیک کیے, اور جب بات اس کے جوتوں تک پہنچی تو اس کے شوز کی ایڑی کو جب اکھاڑا گیا تو اس کے اندر سے ایک مائکرو فون نکلا. امریکہ اور رشیا کی ایجنسیز کے درمیان تعلقات کبھی بھی بہت زیادہ اچھے نہیں رہے, بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں ہمیشہ مصروف رہے ہیں. کبھی رشیا والے امریکنز کی جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے اور بہت بار امریکی سازشوں کا نشانہ رشیا کو بننا پڑا. 1 اگست 1945
यूएस का एक एम्बेसडर एवरिल रशिया के अंदर मौजूद था। अब ज़ाहरी तौर पे एम्बेसडर साहब को बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा था, लोग उनसे सलाम ले रहे थे, उन्हें वहां पे वेलकम कर रहे थे, तोहफे तहाइफ भी बहुत ज़्यादा दिए जा रहे थे। लेकिन उन तमाम तोहफों में एक बड़ा खूबसूरत तोहफा एक लकड़ी का बेहतरीन किस्म का फ्रेम था, जिस पर अमेरिका की खूबसूरत सील बनी हुई थी। और एम्बेसडर साहब ने बड़े फख्र से उस लकड़ी के तख्ते को, उस फ्रेम को अपने ऑफिस में अपनी कुर्सी के बिल्कुल पीछे लगा दिया। अब कौन जानता था कि इस खूबसूरत फ्रेम के अंदर एक ट्रांसमीटर फिट किया गया है, जिसे दूसरी बिल्डिंग में बैठे रशियन बड़े आराम से सुन सकते हैं। आपको सुनकर यकीन तो नहीं आएगा, लेकिन 7 साल तक उस ऑफिस में बोला गया एक एक लफ्ज रिकॉर्ड होता रहा और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। इसके बारे में हादसाती तौर पर तब पता चला जब उन्होंने गलती से एक बार उस लकड़ी पर लगी सील को उतारा तो अंदर से एक डिस्क मिली, जिसके साथ एक माइक्रोफोन लगा हुआ था। नाज़रीन, रशियंस इस काम में हमेशा बहुत आगे रहे हैं। उन्होंने 1970 और 80 की दिहाई में अमेरिका की बहुत सी एम्बेसीज जो कि मॉस्को में थी, उनमें पड़े टाइपराइटर्स के अंदर एल्यूमिनियम के कुछ टुकड़े लगा रखे थे। अब इससे होता यह था कि जैसे ही अमेरिकन एम्बेसी वाले कुछ टाइप करते तो वो डाटा एल्यूमिनियम की बार पर स्टोर हो जाता, और जैसे ही वो फुल हो जाता तो उसकी सारी मालूमात एक RF सिग्नल के जरिए करीब मौजूद सोवियत बिल्डिंग में चली जाती, जिसे वो बड़े आराम से सुन सकते थे। नाज़रीन, ये काम 10 साल तक चलता रहा। नाज़रीन, इस टाइपराइटर वाले मसले को उस वक्त गनमैन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया, और अमेरिकन ने ऐसी 10 डिवाइसेस अपनी एम्बेसीज में ढूंढ निकाली जो कि रशिया की जानिब से लगाई गई थी। अब तो इस टाइपराइटर वाले किस्से को एक अरसा बीत चुका है, लेकिन अगर हम आज की टेक्नोलॉजी को उस वक्त के साथ कंपेयर करें तो किसी टाइपराइटर के मसले को हल करना तो इंतहाई आसान लगता है, क्योंकि अब हमारा सामना डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ है। क्योंकि अब आपके मोबाइल और लैपटॉप में हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर में भी ऐसी छेड़छाड़ की जा सकती है कि उन्हें समझना इंतहाई मुश्किल है। हमने एक ऑपरेशन किया जिसका नाम ऑक्टोपस रखा गया। अब इसके अंदर हमने रशिया की एम्बेसी को टारगेट किया जो कि वॉशिंगटन में थी। उस एम्बेसी की बिल्डिंग बिल्कुल फ्लैट थी और छत से नीचे मौजूद सीवरेज सिस्टम तक एक पाइप जा रहा था, जो ऊपर से देखने में तो बिल्कुल खाली लगता था, जिसे आप ऑप्टिकल इल्यूजन या नजर का धोखा भी कह सकते हैं, लेकिन वो अंदर से खाली नहीं था। उस पाइप के अंदर हमने एक रेडियो रिसीवर और एक छोटा सा धमाका करने के लिए थोड़ा सा बारूद और चंद तारें भी लगा रखी थी। अब हमने किया यह था कि जब वो बिल्डिंग बन रही थी ना, तो उसके तमाम तर माइक्रोफोन्स को दीवार के जरिए हमने पाइप के अंदर कनेक्ट कर रखा था। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन तारों को उस छत से लेके नीचे जमीन तक कैसे लाया जाए। अच्छा, इस सब के लिए FBI ने गर्मियों की तूफानी बारिश का इंतजार किया। जैसे ही बिजली कड़की और बारिश हुई तो हमने उस छोटे से बॉम्ब का बटन दबा दिया, जिसकी वजह से सारे का सारा पाइप पानी से भर गया और नीचे मौजूद पानी की नाली तक जा पहुंचा। इसके साथ एम्बेसी के तमाम माइक्रोफोन्स की लगी हुई तारें जो उन छोटी 2 तारों के साथ कनेक्टेड थी वो नीचे आ गईं, जिनका इंतजार हमारा एक एजेंट पहले से ही कर रहा था। जासूसी में बहुत बार एजेंट्स को सालों साल गुमनामी की जिंदगी काटनी पड़ती है। किसी अनजान इलाके में जाकर ये लोग उन्हीं का हिस्सा बनकर रहने लगते हैं। उनका लिबास, रहन सहन, हर चीज को सीख लेते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक एजेंट की महारत, दलेरी और काबिलियत के बायस ही हर तरह का खुफिया मिशन सरंजाम हो पाता है। अमेरिका की जानिब से एक खतरनाक ऑपरेशन आईवी बेल्स के नाम से किया गया। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि वो ऑपरेशन ओकास्गा समंदर के ऐन बीचों बीच 40 फीट गहरे पानी में किया गया। सोवियत यूनियन ने इस समंदर में अपनी कम्युनिकेशन केबल्स लगा रखी थी, जो उनकी बहरी फौज के हेडक्वार्टर और क्रेमलिन के दरमियान थी। अमेरिका के एजेंट्स ने उस केबल से गुजरने वाली इंफॉर्मेशन को हासिल करने का प्लान किया। सबसे पहले तो उन्होंने एक मिक्स्ड गैस तैयार की, जिसकी मदद से सतह समंदर के नीचे ज्यादा वक्त गुजारा जा सके, और बिलाखिर तमाम तैयारियों के साथ एजेंट्स को समंदर में उतारा गया। सबमरीन से उतरने वाले इन एजेंट्स ने इंतहाई मेहनत के साथ उस केबल पर एक क्लैंप लगाया,
और चंद रिकॉर्डिंग डिवाइसेस भी उसके साथ लगा दी गईं, जिससे वो सारी मालूमात जो उन केबल से गुजर रही थी उसको कॉपी किया जा सके। अब एक सबमरीन रोज वहां जाती और वो सारा डाटा लेकर वापस आ जाती, और यूं एक लंबे अरसे तक ये काम चलता रहा। ये ऑपरेशन अमेरिकन एजेंसीज की तारीख के बेहतरीन ऑपरेशन में से था, और यूं सोवियत नेवी के आने वाले सालों के तमाम तर प्लान्स उन्हें मिल चुके थे। नाज़रीन, वक्त, हालात, हुकूमतें कब कहां कैसे बदल जाएं, आम आवाम की सोच से ये बहुत ऊपर की बातें हैं। अपनी ही सफों में गद्दार हमेशा से पाए गए हैं। कुछ लोग अपने ही मुल्क और कौम का सौदा करने से बाज नहीं आते और मुल्की ताकतों को अंदर से खोखला करते रहते हैं। एजेंसीज को तमाम मसाइल के साथ साथ अपने ही दरमियान मौजूद उन लोगों पर नजर भी रखनी पड़ती है। तो नाजरीन, आज 1960 नहीं बल्कि 2021 चल रहा है, तो अब आप खुद ब खुद अंदाजा लगा लें कि आज की दुनिया में लिसनिंग डिवाइसेस किस हद तक जा चुकी हैं, और उनको पकड़ना तो नामुमकिन नजर आता है। इसके साथ साथ किसी भी बंदे को ट्रैक करने का सबसे बड़ा जरिया है उसका मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन एक ऐसी जरूरत है जिसके बगैर किसी भी शख्स का गुजारा मुमकिन नहीं है। जब आप ट्रैवल करते हैं या खुसूसन एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं तो बहुत कुछ आपके छोटे से वॉलेट में मौजूद होता है, जैसे कि आपका आईडी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट और RFID चिप्स भी। यानी कि अब आपके वॉलेट में पैसों के साथ साथ आपकी इंतहाई कीमती मालूमात भी मौजूद हैं। वो मालूमात जो शायद आप आम तौर पर किसी से भी शेयर करना नहीं चाहेंगे, लेकिन आपको हम बताते चलें कि जब भी इमिग्रेशन करके आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना होता है और चेकिंग के दौरान एयरपोर्ट वाले आपको एक छोटे से सुरंगनुमा कमरे से गुजारते हैं, तो वहां आपकी बॉडी को स्कैन किया जाता है, और ये भी मुमकिन है कि आपके वॉलेट में मौजूद तमाम तर कार्ड्स की मालूमात को भी कॉपी किया जा रहा हो। यानी कि किसी ने आपको हाथ भी नहीं लगाया और आपका सब कुछ छीन लिया। अब इस बात का ये मतलब नहीं कि एयरपोर्ट वाले उस मालूमात को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आज किस लेवल पर जा पहुंची है। जब भी आप किसी को देखते हैं तो सिर्फ उस पर नजर रख के उसे ऑब्जर्व करें, तो आपको अगले बंदे की तमाम तर शख्सियत और उसका काम समझ में आने लगेगा। आवाज के साथ साथ जिस टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है वो है विजुअल सर्वेलेंस, यानी दुश्मन की नकलो हरकत को देखते हुए उस पर नजर रखना। अब इस सब में हाई रेजोल्यूशन कैमरास इस्तेमाल किए जाते हैं जो सालों साल किसी एक जगह पर लगे रहते हैं, और उनकी शेप देख के आप ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये असल में कैमरास हैं। अब इन सब कैमरों में से कुछ कैमरास तो इंतहाई छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि जासूसों के कपड़े या बॉडी के साथ भी इनको लगाया जा सकता है, या फिर इनको किसी पेन के अंदर भी आप बड़ी आसानी से फिट कर सकते हैं। ये वो तमाम अशिया जिनकी मदद से किसी की भी जाती वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया जा सकता है। अमूमन लोगों का ख्याल होता है कि अगर अंधेरा हो जाए तो कोई भी उनकी वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन अब नाइट विजन कैमरास के जरिए ऐसा करना भी मुमकिन हो गया है। आप अंधेरे में भी किसी की वीडियो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कहा यह जाता है कि आसमान की नजर से तो कोई भी नहीं बच सकता। कुछ यही अल्फाज जासूसी की जुबान में भी बोले जाते हैं, जिसमें आसमान में रहते हुए दुश्मन पर नजर रखना होती है, जिसे अंग्रेजी जुबान में एरियल सर्वेलेंस कहा जाता है। इस काम के लिए सैटेलाइट्स बहुत बेहतरीन किरदार अदा करती हैं। वो जमीन का एक एक कोना हमें दिखा सकती हैं, लेकिन मसला ये है कि उन सैटेलाइट्स को चलाना और फिर उनका खर्चा बर्दाश्त करना निहायत मुश्किल है। लेकिन इस मसले का हल भी टेक्नोलॉजी ने ड्रोन्स की शक्ल में ढूंढ लिया है। साइज में छोटा और रफ्तार में बहुत तेज, जहां चाहो उठाए फिरो और जब दिल चाहे हवा में उड़ा दो। नाजरीन, ड्रोन्स किसी की भी जासूसी करने के लिए निहायत फायदेमंद मशीन है। ड्रोन्स की बहुत सी किस्में मार्केट में पाई जाती हैं। आम फिल्म मेकिंग से लेकर मिलिट्री लेवल तक के ड्रोन्स भी पाए जाते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले पेंटागन ने जॉर्जन स्टेयर नामी एक सिस्टम के थ्रू मिलिट्री ड्रोन बनाया है, जिसकी कीमत तकरीबन $15 मिलियन के करीब है।
अब ये ड्रोन घंटों तक हवा में उड़ सकता है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद बड़ा ही सिंपल है, दहशतगर्दों के अटैक का पता लगाना। ये जमीन के किसी भी हिस्से को जूम कर सकता है और ये मल्टीटास्किंग में भी बहुत माहिर है। जूम करने के साथ साथ ये इर्द गिर्द की तमाम चीजों को रिकॉर्ड कर सकता है। अगर आप इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो इसकी रेजोल्यूशन तकरीबन 1.8 मिलियन पिक्सल्स के करीब है, यानी कि आपके 150 आईफोन से भी ज्यादा ताकतवर है। अब दुनिया के बेशतर ममालिक ऐसे हैं जो इस तरह की ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी अपनी सिक्योरिटी को मजीद बेहतर करते जा रहे हैं। चाइना एक ऐसा मुल्क है जो इंतहाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। चाइना ने ऐसे ड्रोन्स बना लिए हैं जो बिल्कुल परिंदों की तरह नजर आते हैं। ये ड्रोन बर्ड्स आम परिंदों की तरह कहीं पर भी उड़कर चले जाते हैं और किसी की भी नकलो हरकत को नोट कर सकते हैं। इन ड्रोन्स में कैमरा, जीपीएस और डाटा लिंक की भी सहूलियात मौजूद हैं। चाइना ने इन ड्रोन्स को डोव का कोड नेम दे रखा है। वो दिन ब दिन अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा मुहतात हैं। चाइना हर लम्हा अपनी आवाम का डाटा इकट्ठा करने में मसरूफ है ताकि वो जान सके कि उनके मुल्क में कौन कौन लोग मौजूद हैं, वो दरअसल वहाँ क्या कर रहे हैं, उनके दोस्त अहबाब कौन हैं, कहीं वो किसी मशकूक तंजीम या गिरोह से याराने लगाने में मसरूफ तो नहीं है, कहीं उनके लोग किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं बने हुए। इन तमाम तर बातों का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। आपको क्या पसंद है, क्या चीज नापसंद है, इंटरनेट पर आपकी सर्चेस किस बारे में हैं, इन तमाम तर चीजों को इकट्ठा करके हर बंदे के पॉइंट्स बनते हैं। अब हुकूमत उन पॉइंट्स की बिना पर अपनी आवाम के साथ रवैया इख्तियार करती है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को उन पॉइंट्स की बिना पर स्कॉलरशिप मिल जाता है और बाकी लोगों को नहीं मिलता। कुछ लोगों को अच्छी नौकरी मिल जाती है जबकि बाज़ लोगों को चंद खास किस्म की नौकरियां हासिल करने से दूर रखा जाता है। अगर कोई हुकूमत के खिलाफ मनफी पोस्ट करता है या फौज के खिलाफ मुसलसल बोलता है तो उनके पॉइंट्स कम हो जाते हैं और उनका स्कोर भी नीचे आ जाता है, जिसका मतलब है कि उन लोगों पर खास नजर रखी जाती है और उन्हें कहीं भी कभी भी ट्रैवल करने की इजाजत नहीं दी जाती। अब अगर गौर से देखा जाए तो ये सब काम चाइना अपने मुल्क की बेहतरी और फलाह की खातिर कर रहा है ताकि वो मुल्की मामलात और सिक्योरिटी को अच्छे से संभाल सकें। इस हवाले से फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें वीडियोस कैमरास जब एक बार किसी बंदे का चेहरा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को नोट कर लेते हैं तो अगली बार वो उस बंदे को बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। सीसीटीवी कैमरास का इस्तेमाल तो अब दिन ब दिन आम होता जा रहा है। आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, पार्क और बिल्डिंग में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जा रहा है। तो आज आर्ट ऑफ स्पाइंग की इस पहली वीडियो में हमने आपको स्पाइंग यानी जासूसी से मुतालिक टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है, जबकि आने वाली सीरीज में हम इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में मजीद जानेंगे। हम ये देखेंगे कि ये लोग काम कैसे करते हैं और एक एजेंट बनने के लिए किन किन कठिन मराहिल से गुजरना पड़ता है।